Okay, 21, 22 students are there. How many students are there total? Who is CR? I just want to talk to CR. Ma'am, around 63 overall A and B. Overall, 16. And how the strength is there in other lectures? Around 30 to 40. Every time, Yes, ma'am. 50% crowd is there. Yeah, ma'am. What's wrong with the students? I don't know. Even while sitting at home, they are not trying to attend the lecture. Okay, so let me clear many things to you. First, I will take you. You are aware about your syllabus. Have you read the syllabus? Yeah, ma'am. Okay, so what we will do now, two teachers are there, Dhanashri ma'am and Monica. Okay, I'm Monica. Right, so what we have done, we have distributed because earlier I think you have done nothing. You have not submitted anything. That's why new classroom is there. And we have divided the modules, right? So थोड़ा ध्यान से सुन लो इसको. Advanced technical writing. The first module I will take. And in that module, three important or major assignments are there. One is report writing, other is technical paper and technical proposal. Though yesterday ma'am taught you about the report writing, she forgot actually. Uh, but we had already decided that she will take your employment skills and interpersonal or corporate skills. Okay, interpersonal skills and the corporate ethics. मैम ये तीन चीजें लेंगी और I will take your important module that is advanced technical writing first, and then I will take your mock meeting and presentation. So be focused कि मेरे लेक्चर में किस चीज पे डिस्कशन होगा. डोंट बी कंफ्यूज्ड. There will be a line between these two parts. Ma'am will take employment skill, वहां पे तुम्हें SOP लिखना बताएंगी, कवर लेटर लिखना बताएंगी, वो तुम्हें रेज्यूमे राइट कैसे लिखते हैं वो बताएंगी. GD, आई थिंक GD को कंटिन्यू करेंगी. एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे कंडक्ट करते हैं शी विल टीच यू. एंड लास्ट इज शी विल टेक ए टेस्ट जो तुम्हारा वर्बल एबिलिटी पे होगा. दैट इज योर ग्रामेटिकल ग्रामर का एक टेस्ट होता है लैंग्वेज का. दैट ग्रामर प्लस योर वोकेबलरी एंड दैट विल बी डन एज पर योर GRE लेवल. ओके, GRE लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसा कुछ टेस्ट जो वो वहां पे मैडम बना के देंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट एथिक्स में वो तुम्हें केस स्टडीज करवाएंगी एंड इंटरपर्सनल स्किल में रोल प्ले जैसी एक्टिविटीज रहेंगी. ये मैम करवाने वाली है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू योर प्रोजेक्ट related things or the research related things. So first and your mock meeting and then the presentation ये मेरे पास रहेगा, right? So what you have to do, or at the end assignments correction and everything I will do. She will take your lectures only and assignment submission should be done on time. Timely hoga, only then you will get good marks. So you need to be sincere now for PC2 because already 1 month has gone and I'm not sure that
whether you have done single assignment or not. Have you submitted anything on Google Classroom as No, assignment? ma'am. No, na? No, Yes, ma'am. that means we are late and we have to wind up many activities, right? So, without wasting time, I'm just going to ask you, technical paper paraphrasing, have you done or not? Very first assignment in the advanced technical writing. Technical paper kiya paraphrasing? इस तरह का कोई assignment have you done? No, ma'am. No, ma'am. नहीं किया है. Okay. Proposal किया? Yes, come on, so many people, 26 people are there, only one person is speaking. You don't know anything. अगर नहीं किया, if you have not done it, just tell me. We have to start from there. Technical proposal किया? पता है क्या होता है? Ma'am, assignments are remaining. नहीं किया है ना. और टेक्निकल कुछ भी नहीं किया, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग वी हैव टू डू. In short, you just tell me so that I will share my first PPT. Say yes or no. From Yes, starting we ma'am. have to do na. Yes, ma'am. Right. Okay, you should be very prompt. When I am asking na, I get fed up here if no answer comes to me. So बहुत ही वो रहता है मेरे लिए ये problematic. I'm just going to share the PPT with you. Okay, I will show you what you have to do, and I will exactly tell you, because we need to be very fast here. Earlier I used it for CMPN people and civil people, electronics people. Now I'm just going to tell you. ये I will share this PPT with you. इसमें in short बताती हूँ तुम्हें करना क्या है, ठीक है? एक technical, have you heard about the technical paper? I'm just going to share my screen. Yeah, I'm just going to share. Do you have any idea about the technical paper? Now the screen is visible to you, I think. Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या यू टेल मी नाउ. देखो तुम्हें ना इंटरेक्ट करना है, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे आंसर दो, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक. वी हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. I have started the recording too, right? And this is the PPT. In short, अब already we are late, तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते. We have to be very fast. So what exactly we have to do? Give me 1 minute time, please. Something is there. Time, what you do, you can see this, right? You read this. Actual page. इसमें ना तुम्हें समझ भी नहीं आएगा एक्चुअली, बताना ही पड़ेगा. टुडे इज सैटरडे ना एक्चुअली. Really very sorry. Yeah. So
क्या रहता है इसमें कि टेक्निकल एक पेपर होता है जो पब्लिश होता है, शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी रहेगा। वो टेक्निकल पेपर तुम्हारे सिलेबस में है, या तो तुम्हें बनाना है या कोई रेडीमेड पेपर लेके तुम्हें उसको पैराफ्रेज और एनालाइज करना है। तो राइट नाउ इफ any diploma student who is already published his paper, anyone is there, anyone, because I have seen many people from electronics, CMPN, they are having their papers, उनके papers है। तो if someone is there from you who is having paper, then tell me, किसी का टेक्निकल पेपर पब्लिश हुआ है? Yes? No, ma'am. No. Okay, so that's why you all are new to this, right? तो क्या करो तुम, you cannot make technical paper right now because it is too late. तो what we will do, एक पेपर डाउनलोड करेंगे। ओके, मैं सीधा तुम्हें डायरेक्ट बताती हूँ करने के लिए। देखो, एक आई एम जस्ट गोइंग टू डू समथिंग। यहाँ पे जाओगे एंड गूगल पे यू विल सर्च टेक्निकल पेपर। Ma'am, technical paper is like a report or a PPT. डियर, इट इज नॉट रिपोर्ट, इट इज नॉट पीपीटी। जर्नल पढ़े हैं ना तुमने? जर्नल्स रहते हैं ना Yes, जिसमें ma'am. कि पेपर, वो है ये। और उसमें उसमें मैं अभी आई विल शो यू EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स का बता देती हूँ। Ma'am, same as research paper. या दैट इज टेक्निकल रिसर्च पेपर, राइट? सो दिस रिसर्च पेपर जो टेक्निकल पेपर रहता है यू विल डाउनलोड। तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट? ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल, ये देखो, फ्री रिसर्च पेपर्स आर देयर, राइट? ऐसे ही ना किसी का पब्लिश पेपर लोगे, ठीक है, पब्लिश डालो इसमें और फ्री डाउनलोड में जाओगे, ठीक है? पब्लिश्ड, सॉरी, फ्री डाउनलोड में जाओ। सब बच्चों को करना इंडिविजुअल। फ्री डाउनलोड में जाके तुम्हें किसी जर्नल मिलेगा कोई, ठीक है? ये देखो, जैसे IEEE फॉर्मेट रहता है वो। ये अभी वी आर लेट ना, बहुत सारी चीजें बताने को है, बट इन शॉर्ट एटलीस्ट तुम असाइनमेंट तो कवर करो, इसलिए मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताती हूँ। और इसका डेडलाइन ना बहुत जल्दी दूंगी मैं तुम्हें, विद इन 1 वीक यू हैव टू डू, राइट? अब तुम्हारे इसमें आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स से रिलेटेड है, तो रोबोट से रिलेटेड जितने भी पेपर डाले रहेंगे वो इधर मिलेंगे। देखो, फर्स्ट पेपर मैं फ्री डाउनलोड में जा रही हूँ, और ये सर फ्री, इसका मैं क्या करती हूँ फॉर योर सेफ्टी, मैं इसका लिंक ही डाल देती हूँ तुम्हें, तो तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाएगा, राइट? स्ट्रीम में ये लिंक डाल रही हूँ मैं, Control-V, लिंक फॉर टेक्निकल पेपर्स। इस लिंक पे तुम ओपन करोगे और यू विल गेट पेपर, ठीक है? ये पेपर मैंने निकाले। अब इस पेपर को डाउनलोड कर लो। फर्स्ट यहाँ पे सर्च करो, पहले देखो ये है ग्राफ टू ग्राफ मीनिंग रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रोबोट डायलॉग्स। ऐसे रोबोट्स के भी हैं। इफ यू विल गो बैक, मैंने एक और चीज, मुझे एक्चुअली या आई वाज देयर, ये देखो रोबोट का है, मोबाइल फोन्स का है, रास्पबेरी है, फोटोनिक्स है, बहुत सारे फील्ड है। तो किसी भी फील्ड का तुमने फिर एक पेपर, किसी भी फील्ड में जाओ एंड व्हाट you will open that and you will see number of published paper over there, then you read, तुम्हारी चॉइस का कोई पेपर जो है वो तुम फ्री डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंटल एथिक्स अप्रोच टू, इसको फ्री डाउनलोड्स में जाके ये पेपर तुम्हें मिलेगा इधर। देखो, अभी ये बहुत सर्च करना पड़ता है वेदर फुल पेपर इज देयर और नॉट। अभी ये क्या ओपन हुआ इसमें, पेपर किधर है? सिलेक्टेड पब्लिकेशंस, 1 minute again, we'll go दूसरा ट्राई करते हैं, रिपोर्ट इंटरेक्शन। ये है, दिस इज द पेपर, ऐसा आएगा पेपर, ओके? समझे? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am.
अब ये ना एक ही पेज का बता रहा है, आई थिंक ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन, तो एटलीस्ट ऐसे पेपर ढूंढना। नहीं, पेज 532, ये तुम्हें सर्च करना पड़ेगा इसमें, 1 of 1, ये 1 ही का है। इस तरह से मिनिमम 4 पेजेस से नीचे वाला मत लो, 4 5 6 तक रखना, 6 से ऊपर मत लो, बिकॉज उसको तुम्हें पैराफ्रेज करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे डिफरेंट पेपर्स को तुम सर्च करते हो ना, तो तुम्हें डिफरेंट पेपर का व्हाट वी वांट एज पर द रिक्वायरमेंट। एज आई टोल्ड यू कि मुझे पेपर 4 से 6 पेज का चाहिए, कि कम से कम 4 से 6 पेज का पेपर होना चाहिए। ठीक है, 4 से 6 पेज का जो पेपर मिलेगा तुम्हें, ये मिला है, जैसे अब कितने पेज, 5 पेज है, वेरी गुड। ओके, ये इसको डाउनलोड कर लो, ये आज से ही शुरू करो। ये पेपर डाउनलोड करोगे तुम, ये तुम्हारी असाइनमेंट है बेसिकली, राइट। तो मैंने इसको डाउनलोड किया, मैं पूरा ही बता देती हूँ कैसे करना है ये पेपर, ताकि तुम्हें विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज वी विल नॉट गो डीप इनटू द थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकली वी विल डू। थ्योरी बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने, आई थिंक। एग्जैक्टली करना क्या है? नेट स्लो हो गया, आई थिंक। मैम तो असाइनमेंट के कंटेंट्स क्या क्या है, तो हमें क्या क्या दैट्स लिखना व्हाट आई है? एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाट आई, तुम्हें इसको चेंज करना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, राइट। मतलब क्यों है ये ऐसा, एक पेपर बनाना था तुम्हें बेसिकली, बट वी आर लेट और इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज इट कैन बी डन विद द असिस्टेंस ऑफ योर प्रोफेसर्स ओनली। आई एम बीसी इंस्ट्रक्टर, सो आई कैन नॉट टीच यू द टेक्निकल थिंग्स, राइट। मैं तो अपना बीसी पार्टी करवाऊंगी, पर ये टेक्निकल है, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट है, तो तुम्हारे टीचर्स की हेल्प से ही जैसे एक रिपोर्ट टीचर की हेल्प से होती है ना, कोई भी रिसर्च रिलेटेड चीज होती है, कोई इसके लिए सुपरवाइजर चाहिए रहता है, जस्ट लाइक दिस। फॉर दिस पेपर एटलीस्ट तुम्हें 2 महीना चाहिए एक पेपर बनाने के लिए, वो भी इसलिए कि कोई एक्सपर्ट बंदा तुम्हारे साथ है। इफ नो वन इज देयर यू कैन नॉट अलोन, एंड अदर थिंग इज दैट नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो मैं इसको क्रिएशन में नहीं रख रही हूँ कि तुम्हें बनाना नहीं है, सिलेबस में दोनों ही ऑप्शन है। अदरवाइज तो यू पब्लिश योर पेपर, बनाओ और पब्लिश करो, अदरवाइज यू टेक डाउनलोडेड पेपर ले लो, एक रेडीमेड पेपर ले लो, और उसके साथ तुम क्या करो, एक ये डाउनलोड So ma'am, we करो। have to just change the language of this या दैट and इज, write it in our own terms. यस, टर्म्स नहीं है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द फाइंडिंग ऑफ समवन, है ना। ये किसी का, एक एक सेकंड जरा रुको, मैंने गलत जगह पे क्लिक कर रही थी एक्चुअली, सॉरी। अब डाउनलोड हो जाएगा, दिस इज डाउनलोडेड पेपर, क्योंकि इसमें ही मुझे शो करना है, कि इसमें मैं एडिट नहीं कर सकती ना, ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ है, ये स्टेप्स है बेटा, वॉट एवर आई एम डूइंग ना, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स। इसका है नोवेल, अभी डाउनलोड्स में मिलेगा मुझे। एक 1 मिनट, डाउनलोड्स में होना चाहिए, ये शो कर रहा है, लेट मी चेक, ये पेपर है। ओके, दिस इज द पेपर। ऐसे डाउनलोड करोगे तो यू कैन सी इट इन द डाउनलोड, और फॉर सेफ्टी सेक व्हाट वी विल डू, हम इसको कॉपी करेंगे, ओके। और पूरा तरीका बता रही हूँ, दोज हु आर नॉट अवेयर कि पीसी का असाइनमेंट कैसे करना है। अब तुम क्या करो, किसी भी ड्राइव में, तुम्हें, तुम ई में जाओ, मैं तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, और उस फोल्डर में इस पेपर को डाल रही हूँ, समझ आया। और उस फोल्डर का नाम दे दो, आई एम जस्ट शोइंग, बिकॉज मुझे कंप्यूटर स्किल्स भी पढ़ाने ना तुम्हें, तो इसको मैंने बोल दिया टेक्निकल पेपर।
असाइनमेंट। इस फोल्डर को ही नाम मैंने दे दिया है टेक्निकल पेपर असाइनमेंट, ठीक है। अब जितना भी काम है ना हमें इसमें ही करना है। पेपर डाउनलोड हो गया, राइट, वी हैव डाउनलोडेड द पेपर। I'm just going back to the meet now, right? We have downloaded the paper, very first step. और download कैसे करना है, लिंक मैंने शेयर किया। You can also go to different sites, you can also find paper तुम्हारी field से related होना चाहिए। It should not be more than 6 pages, not less than 3 pages, right? 4 pages, 4 to 6 की एवरेज उसमें रखो एंड देन डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब इस फोल्डर में गए, राइट, इस फोल्डर में फिर रिटर्न हो जाएगा, इसको नीचे ला दिया, राइट। इस फोल्डर में गए, हमें पता है पेपर ये है, इसका रीनेम कर लो इसको, नहीं तो यू विल बी कंफ्यूज। F2 मैम। ओके, यहाँ पे टेक्निकल पेपर में टीपी डाल रही हूँ, राइट। ये तुमने इसको सेव कर लिया टीपी के नाम से। अब क्या जाओ अगेन, यहाँ पे थे ना न्यू टैब पे, अब इसको हमने एडिट करना है। तो ये पीडीएफ है, इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये मैंने पीपीटी में डाला हुआ है कि फर्स्ट स्टेप डाउनलोड द पेपर। Once you have downloaded the paper, it will be in the PDF form. Then the second step is PDF to Word converter में जाओ, PDF to Word converter में। बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें गए, ठीक है, चूज फाइल। अब मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा है, डेस्कटॉप पे गए, डेस्क और TT2 करके मैंने इसको डाला है, ठीक। कन्वर्ट टू वर्ड करो, बहुत छोटी चीजें हैं बट स्टिल कुछ बच्चों को नहीं पता होती। ऑप्शन चूज किया, कन्वर्ट, ये वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। हो गया, अब डाउनलोड कर लो, वर्ड में है तो। फिर सेव किया, आई एम डूइंग इट इन द मोजिला फायरफॉक्स, तो इसलिए मुझे फिर यहां दिखेगा ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड TT2 open file, what is showing? Just wait, we have attached wrong file here. Wrong file, TP tha, that was TP actually, and because we are in hurry na, so that's why it happened. Okay, it was TP, right? TP को attach करो, convert, choose option, अब ये convert हो जाएगा वर्ड में। Download this, TP converted, open file, ये आ गया। फिर इसको क्या करो, अब ये डाउनलोड्स में ही है, फिर इसको सेव एस करके, कौन सा फोल्डर हमने बनाया, ऐसे हर असाइनमेंट को तुम्हें सेव करके प्रॉपर वे में, दीज आर द एथिक्स बेसिकली, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, सबको पता है, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू, राइट। ये हो गया। अब क्या तुम्हारा काम कहाँ से शुरू होता है, मैं बताती हूँ। अब ये जो पेपर है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब आइडिया चेंज नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आइडिया नहीं चेंज करोगे तुम, लैंग्वेज चेंज करोगे। दिस इज कॉल्ड एज द पैराफ्रेजिंग, और पैराफ्रेजिंग के रूल्स हैं जो पीपीटी में शेयर है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा चीजें जो है, रेफरेंसेस हैं,
बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू कट शॉर्ट कि तुम्हारा एटलीस्ट मैंने बहुत डिटेल में करवाया बाकी लोगों को, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई टू गिव यू ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब इसमें तुम्हें पैराफ्रेजिंग करनी होती है। पैराफ्रेजिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे वो जहां जहां तुम्हें ये कंटेंट दिख रहा है ना, इस सबका लैंग्वेज चेंज करना है। डेटा बिल्कुल चेंज नहीं करना है। यू विल नॉट चेंज द डेटा, टर्म्स, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, ये तुम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसका फाइंडिंग है, उसका वर्क है। तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करोगे, सिर्फ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज चेंज करके, बिकॉज वी आर कीपिंग इट टू द लेवल ऑफ पैराफ्रेजिंग, इवन एनालिसिस में भी नहीं लेके जा रहे हैं, बिकॉज टाइम इज नॉट देयर। तो तुम सिंपल पैराफ्रेज करके इसको सेव करते जाना है चेंजेस जो ये देखो। और दूसरी चीज सीखनी है तुम्हें, ये रेफरेंसेस। तो क्या होता है, अभी मैं तुम्हें बेसिक चीजें बताती हूँ। ये जो टेक्निकल पेपर होता है, बेसिकली रिसर्च पेपर होता है कि न्यू आइडिया हैज कम, ओके, नए एरिया पे रिसर्च कर रहे हो तुम, एंड दैट इज गोइंग टू बी बुकिश ओनली। ये सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड होता है, इसका कहीं ऐसा नहीं है कि सेम चीज तुम बना सकते हो। You can give your idea and that idea will be published in any book, any paper, journal में, पेपर में वो होगा। और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, दैट इज IEEE फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट दिख रहे हैं ना तुम्हें, एक कॉलम में लेटर है, दो साइड पे लेटर दिख रहा है, ठीक है, टू कॉलम में है। दिस इज टू कॉलम इज द सेटिंग किया है, व्हाई इट इज ओके। और ये रेफरेंसेस है यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इन शॉर्ट होता क्या है, कोई भी नई चीज जब हम क्रिएट करते हैं, बुक्स ऐसे ही बनती हैं, ओके। जो भी लोग बुक्स लिखते हैं ना, वो भी एक दैट इज ब्रॉडर एस्पेक्ट कि वो बुक है, और ये ऐसे 3-4 पेज को रिसर्च आर्टिकल बोलते हैं, समझे। तो न्यू आइडिया रहता है इसमें, और इसमें कोई नया विजन लेके आते हो तुम कि ये पॉसिबिलिटी है तुम्हारी फील्ड में, इस सब्जेक्ट को वी कैन एक्सटेंड। अब वो बनाते तो तुम हो, लेकिन उसके लिए रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं कि जहां से तुम मटेरियल उठाते हो, ठीक है। जैसे तुम डिफरेंट साइट्स में जाते हो, वहां से मटेरियल उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हो डायरेक्टली, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होता। अगर तुम कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो ये डिसअप्रूव हो जाएगा, अप्रूव ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने किसी की राइटिंग को स्टील कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेजरिज्म, राइट, प्लेजरिज्म हो जाता है वो। तो हमने प्लेजरिज्म सीखना है, डाउनलोडिंग कैसे होती है पेपर की वो सीखा है। पेपर अच्छा रेप्यूटेड होना चाहिए, उसके लिए उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, और उसके लिए उसका एच इंडेक्स देखना है। वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि अभी वी हैव टू डायरेक्टली डाउनलोड द पेपर। इसके साथ साथ हमें जर्नल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अब तुम्हें एज EXCC स्टूडेंट, तुम्हें किसी जर्नल का नाम पता होना चाहिए, उस जर्नल का क्या रेप्यूटेशन है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, उसका एच इंडेक्स कितना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इम्पैक्ट फैक्टर जिसका 5 से ऊपर होता है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। 5.6, 6.1 ऐसे करके जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता जाता है वो अच्छा माना। इस तरह से एच इंडेक्स भी होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइटेशन होती है। अब तुम रिसर्च में बिल्कुल भी अभी नहीं हो, तो तुम्हें ये चीजें थोड़ी सिर के ऊपर से जाएंगी, राइट, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस थिंग कि एक जर्नल क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे इंटरनेशनल जर्नल जो रहते हैं वो हर सब्जेक्ट के रहते हैं। तो EXCC वाला जो बंदा है वो उसमें उस जर्नल में अपना पेपर रेडी करेगा, वहां पे भेजेगा, वो पेपर को अप्रूव करेंगे कि तुम्हारा पेपर वाकई अच्छा है, इसका कंटेंट, इसका सब्जेक्ट, इसका फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग इज गुड। फिर वो अपने उस जर्नल में उसको पब्लिश कर देते हैं। तो जो तुम जर्नल पढ़ते हो, फिर तुम्हारा पेपर उसमें आ सकता है, जिसको लाखों लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया। अब वो जर्नल कितना रेप्यूटेड है, उसका नाम कितना है। कुछ जर्नल्स तो ऐसे हैं, कुछ भी कचरा दे दो वो ले लेंगे, ठीक है। सम जर्नल्स आर वेरी वेरी गुड, UGC अप्रूव्ड हैं। तो तुम्हारा स्कोपस का नाम तुमने, गूगल स्कॉलर तुमने सुना होगा, जिसमें कि पेपर जो जो वेराइटी और क्वालिटी ऑफ पेपर्स को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर उनका एच इंडेक्स और इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो उससे रिलेटेड होता है कि एक पेपर तुमने लिखा, माना है ना, वो अच्छे जर्नल में गया। अब उस पेपर को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो लोग पढ़ रहे हैं आगे तुम्हारे लिखे हुए चीजों को रेफर कर रहे हैं,
और जब मैक्सिमम साइटेशन हो जाएंगी तुम्हारी, ज्यादा अच्छी साइटेशन है, तो वो पेपर अच्छा माना जाता है, और वो जर्नल भी अच्छा माना जाता है, और वो राइटर भी अच्छा माना जाता है। यूट्यूब का देखा है ना, यूट्यूबर इज देयर, कितने व्यू हुए तुम्हारे, है ना, होता है ना, व्यूज के ऊपर होता है, तो व्यूज अच्छे हैं, सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, तो तुम्हारा चैनल चल जाता है। यू आर ए गुड यूट्यूबर, तुम्हें उसका क्या मिलता है, फिर तुम्हें इन रिटर्न्स मिलने चालू हो जाते हैं। स्टडीज में ऐसे ही एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे ही जर्नल्स का भी होता है। रेप्यूटेड जर्नल्स है, रेप्यूटेड चैनल्स है, रेप्यूटेड अच्छे वीडियोस आएंगे उसमें। आर यू गेटिंग विद दिस थिंग? रेप्यूटेड जर्नल है तो अच्छे लोगों का ही और अच्छी ही सब्जेक्ट का, और जो प्रॉपर किसी ने सीरियसली टेक्निकल पेपर किया होगा वही पब्लिश करोगे। उसको रेप्यूटेड है तो बहुत सारे रेप्यूटेड लोग ही पढ़ेंगे स्टडीज से रिलेटेड। ओके, क्वालिटी मेंटेन हो गया ना। अब जो जितने भी रिसर्चर्स हैं, माना तुमने ये पेपर बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, तो ऐसे तुम्हारे पेपर को भी कोई पढ़ेगा। आर यू गेटिंग? जब तुम्हारे पेपर को पढ़ के लोग तुम्हें साइट करेंगे अपने पेपर में कि ये इस राइटर ने बोला था, तो उसका एच इंडेक्स हो जाता है, उस पॉपुलरिटी हो जाती है उस जर्नल की भी, उस पेपर की भी, और उस राइटर की भी। तो अल्टीमेटली जितनी पॉपुलरिटी राइटर की है या आर्टिकल की है, वो उतना ही जर्नल इफेक्टिव बनता जाता है, उसका स्ट्रेंथ बनता जाता है। तो इन शॉर्ट मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश किया है। असाइनमेंट में तुमने क्या करना है, इसको पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, और इसको फिर पैराफ्रेज करो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पैराफ्रेज, गिव मी 1 second. It's very difficult to do work on holiday. अब तुम्हारा एक्चुअल काम शुरू होता है। यू विल नॉट चेंज द टॉपिक। ये देखो, ये जर्नल लिखा है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, मतलब तुम्हारा टॉपिक रोबोट्स का भी है, बट मैकेनिकल वाले लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जर्नल है बेसिकली। तो इस जर्नल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स रिसर्च से रिलेटेड पेपर ज्यादा पब्लिश होते हैं। फिर उसका ये देखो, इस पे वॉल्यूम 9 लिखा है और नंबर 1 है, ये 9 वॉल्यूम है उस रिसर्च पेपर का, और नंबर 1 इसका ये वाला इशू बोल लो इसको, और ये जनवरी 2020 का है। ये उसकी पहचान है कि ये पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है, उस जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल, IJMER इसका शॉर्ट नेम रहेगा। फिर ये टॉपिक क्या है, इट इज गिवन ओवर देयर, किसने पब्लिश किया है, वो उस बंदे का नाम है ताकाशी हाराडा, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, जापान का बंदा, दैट्स व्हाई ओके नेम इज डिफरेंट, राइट। जब तुम टाइप करोगे ना, तो उसमें इंडियन ऑथर्स को डाल लेना टाइपिंग में, जैसे फ्री डाउनलोड को मैंने टाइप किया था, इंडियन ऑथर डालोगे तो इंडियन ऑथर का पेपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम ये चेंज करते जाओ। एब्स्ट्रैक्ट को रहने दो, जहां से तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है वहां से करो। जैसे ये है, क्या है टेक्निकल टर्म्स है, टू डॉफ प्लानर ट्रांसलेशन मोशन जनरेटेड बाय डिफरेंशियल बेल्ट ड्राइव हैव बीन प्रपोज्ड सच एज H frame, H boat and H core. Hello, ma'am. Yes, yes. Ma'am, we don't have to change title and author, right? No, never, because you Okay. cannot steal anybody's work, right? But you can Yes, ma'am. add one thing, once the paper will be paraphrased ना, तो यहाँ पे अपना लिख लो, यहाँ पे नाम paraphrased by, यहाँ पे लिखो paraphrased by your name, इतना कर सकते हो। You cannot change the topic, content भी change नहीं करना है, जो जो एक्चुअल नॉलेजेबल चीजें हैं वो चेंज नहीं करनी, सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज करनी है। ठीक है, अब इसको Okay. तुम कैसे बना सकते हो, जहां जहां पे पॉसिबल है, जहां पे टेक्निकल टर्म है उसको भी चेंज नहीं कर सकते ना। तो टू डॉफ प्लानर transitional motion generator by differential belt drive have been proposed such as, तो इसका
इसको हम यहां से शुरू कर सकते हैं, एच फ्रेम 1, एच बोट 2 एंड कोर एक्स वाई, ओके, आर प्रपोज्ड, क्या बोलेंगे इसको, जनरेटेड बाय डिफरेंशियल बेल्ट ड्राइव. Language is whatever. Other thing is this is very technical. I need to understand first. Two of planar transitional motion generator, है ना? This is a device, I think, generator by differential belt drive have been proposed, such as H4, and these mechanisms are collectively called as H3. Okay, right. So you can start from here, okay? The mechanism H gantry or gentry, what is this? I don't know. The mechanism H gentry is what? It is a two-door planar or generator which works on transitional motion, okay, by using differential belt drive, and it can be proposed as H frame, H boat and H core. मतलब ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म कैसे बना है उसको तुमने एक्सप्लेन किया. इसको बाद में लिखा ना, कॉल्ड एच गेंट्री इन दिस पेपर, तो तुम इसको पहले लिखो, द मैकेनिज्म एच गेंट्री, व्हाट इज दिस, ठीक है? तो वो क्या है, that is a generator, okay, to do of planar generator which worked on translational motion, okay, having differential belt drive and can be proposed on H frame, H boat and H core, जो भी है. Moving part is driven by two motors. तो इसको सिंपल कैसे करोगे, मैं इस देर बना के बताती हूँ, ठीक है? फ्रॉम हियर आई एम डूइंग. मूविंग पार्ट इज ड्रिवन बाय टू मोटर्स फिक्स्ड ऑन द बेस. तो मैं इसको क्या बोलूंगी, द मूवेबल पार्ट्स, मूविंग को मूवेबल कर दिया मैंने, मूवेबल पार्ट ऑलरेडी है. मूवेबल पार्ट ऑफ क्या है, ये जनरेटर ही रहेगा ना ये. अब द डिवाइस कर लो, पूरा का पूरा जो डिवाइस है, डिवाइस, मूवेबल पार्ट ऑफ द डिवाइस is driven by two motors which are base fixed. इसको मैंने which are base fixed बोल दिया, इसको जो बेस से फिक्स्ड है. मैं क्या लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है? ठीक है, जिसको मैंने किया उसको आई विल चेंज इनटू द रेड फॉन्ट ताकि मुझे पता चले कि मैंने किसको चेंज किया है, ओके? फिर द एच गेंट्री इज वाइडली अप्लाइड फॉर दिस मैकेनिज्म. अब बार बार मैं बोलूंगी नहीं कि दिस एच गेंट्री जेंट्री, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, आई डिडंट रेड इट अर्लियर. द मैकेनिज्म, इसको बोल दूंगी, ये एच गेंट्री क्या था, ये मैकेनिज्म था ना. दीज मैकेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, सो दीज मैकेनिज्म्स आर वाइडली अप्लाइड बिकॉज ये नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म है, कलेक्टिवली बोला है, तो एक मैकेनिज्म नहीं है. दीज मैकेनिज्म्स आर अप्लाइड, वाइडली काट दो, जरूरी भी नहीं है, ओके. अप्लाइड फॉर एक्स वाई प्लॉटर एंड एक्स वाई कटिंग मशीन, इसको चेंज नहीं कर सकते. रिसेंटली नोबेल फोर्ड ऑफ स्कॉनफ्लाइज मोशन जनरेटर, ओके. सो रिसेंटली को चेंज कर दो, प्रेजेंटली कर दो, है ना. वी कैन यूज सिनोनिम्स, वी कैन यूज सिंपल लैंग्वेज. प्रेजेंटली नोवेल फोर्ड स्कॉनफ्लाइज मोशन जनरेटर, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये जनरेटर है. ट्रांसलेशंस अलोंग XY and Z axis and rotation around Z axis proposed by a combination of two, okay. तो ये जो नया उसने क्या वर्क किया है, उसके टाइटल पे जाओ तो यही है नोवेल, ओके. तो उसने क्या किया, द न्यू जनरेटर, ओके, दिस इज द नोवेल फॉर ऑफ दिस न्यू प्रेजेंट, या दिस या प्रेजेंटली भी मत करो, द न्यू नोवेल फोर्ड ऑफ स्कॉनफ्लाइज मोशन जनरेटर, ओके. इट ट्रांसलेट्स और इट वर्क्स कर दो, ओके. वर्क्स अलोंग, ये कैसे काम करता है,
along x, y and z plan, or that is the axis, and rotation around, ये translate करता है x, y, z में, okay, एंड रोटेट करता है जेड एक्सिस पे। तो ट्रांसलेशन चाहिए था, इधर वर्क्स नहीं कर सकते हैं। ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट्स, सॉरी, it takes time actually. Why I'm struggling? What I can do, I can make the font bigger, but later on you have to bring it. पहले कर लो इसको, पर बाद में 12 ही रखना इसका साइज। आर यू लिसनिंग एंड आर यू एबल टू सी द थिंग्स और नॉट? Yes, ma'am. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज Yes, योर ma'am. वर्क, राइट? दीज मैकेनिज्म आर अप्लाइड, ये मैंने यहाँ से किया, अप्लाइड फॉर, इसको हमने चेंज नहीं कर सकते तो इसको फिर हमने रेड में ही रखा, है ना। इट ट्रांसलेट अलोंग्स एक्स वाई जेड एंड रोटेट्स अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, इसको नहीं हम चेंज कर सकते, इसको भी रेड में रखो, मतलब मैंने इसको चेंज किया। प्रपोज बाय ए कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से हम इतना जो है यहाँ से हम चेंज कर सकते लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस में यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दो। दिस mechanism is done, this mechanism is done by combination of two H gantry and screw spline। अब जो ये नोवेल स्कोन फ्लाइज, जो भी वट एवर द टर्म वाज देयर, ये मिक्सिंग है, ओके। तो यहाँ पे दिस मैकेनिज्म, तो यहाँ पे तुम नाम भी लिख सकते हो, द नोवेल स्कोन फ्लाइज जो सिस्टम है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द सिस्टम एंड इट विल बी डन। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एच गेंट्रीज एंड स्क्रू स्प्लाइंस, ओके। अब यहाँ पे नंबर 4 है, ये नीड टू अंडरस्टैंड ये क्या है। और यहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया है जो मैंने गलत किया, बिकॉज मैंने नंबर 4 नहीं देखा था। आई एम जस्ट गोइंग बैक, कंट्रोल Z करके मुझे वापस जाना है, बिकॉज प्रपोज्ड बाय, ओके। ये इसको मैंने चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 लिखा है। ये नंबर 4 क्या है? अब देखो, इसको रिलेट करते हैं। ये नंबर 4 है, यहाँ पे रेफरेंसेस में जाओ ये रेफरेंसेस नंबर 4, ये समझ आया? मतलब कि नंबर 4 वो जो बुक, वो जो लाइन ली है वो इस बुक से ली है। ये बुक है या जो भी, ये रिसर्च पेपर का जर्नल, आई थिंक प्रोसीडिंग ऑफ, ये पढ़ो। ये जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, इधर ये बुक्स होती हैं या जर्नल्स होते हैं, जिन बुक्स को पढ़ा होता है, जहां से नॉलेज लिया होता है। तो उस बंदे ने वो उस लाइन को, वो उसका खुद का नॉलेज नहीं है। अभी गो बैक एंड आई विल टेल कि प्रपोज्ड बाय जो अगली लाइन है, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसने नंबर 4 लिखा है। मतलब वो उस राइटर ने नहीं लिखा है, वो इस राइटर ने लिखा है, क्योंकि उसने ये बुक पढ़ी है, वो इस बुक में ये लिखा है। और दिस इज बेसिकली द प्रोसीडिंग ऑफ इंटरनेशनल, ये साइंटिफिक रिसर्च का कोई जर्नल है, आई थिंक, मुझे लगता है रोबोटिक्स के ऊपर ये प्रोसीडिंग होता है, PROCE, ठीक है। और उसमें इस जर्नल, उसने जो आर्टिकल लिखा था उसका नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डॉफ गैलेंट्री टाइप पैरेलल मैनिपुलेटर। तो ये चीजें जो हैं, ये तुम्हें समझनी थी, इसका नॉलेज के लिए है ये, कि ये 4 कहाँ से रिलेटेड है, इसका क्या लिंक है। तो रेफरेंसेस आर मेन। अभी मैं रेफरेंसेस नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तुम्हें करवा दूंगी। अभी सिर्फ डाउनलोडिंग और पैराफ्रेजिंग करो और थोड़ा समझ लो कि मैम क्या बोल रही है। अगर ये नंबर 4 आया है तो इसको पैराफ्रेज नहीं करना है भाई, इसका पैराफ्रेज करने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर तुम इसको पैराफ्रेज करोगे, इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इन टेक्स्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ, इन टेक्स्ट साइटेशन। साइटेशन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा लिखा हुआ पेपर बाकी कितने लोग अपने अपने पेपर में डाल रहे हैं, मतलब तुम्हारे नॉलेज को कितने लोग अपने में डाल रहे हैं, ठीक है, कि तुम सही हो, ठीक है। मोर यू विल बी साइटेड, योर पेपर विल बी साइटेड, तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा लोग तुम्हें मान रहे हैं कि जो उस बंदे ने लिखा था दैट इज करेक्ट, ओके। तो इसको, ये जो नंबर 4 वाली चीज है, इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। और अगर इसको तुमने अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है तो इसका तरीका अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं इसको डायरेक्ट कोट भी बोलते हैं। अभी इन टेक्स्ट साइटेशन है, और इसको इनडायरेक्ट कोट में चेंज करने के लिए
तुम्हें लिखना पड़ेगा। नंबर 4 पे फिर वापस जाओ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये तुम्हें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि किसी टीचर ने तुम्हें टेक्निकल पेपर पैराफ्रेजिंग करवाया तो उसने ये सब बताया। ओके, दिस इज माय ड्यूटी टू टेल यू बिकॉज लेटर ऑन यू हैव टू गो। अब इस राइटर का नाम क्या है, ये देखो, जेड फोगो। ओके, जेड फोगो। एंड उसने कौन सी बुक में लिखा है ये, इसमें, ठीक है। तो अगर हम बुक का नाम नहीं भी लेते हैं तो उसने पीपी 1206 और 1211, 1206 एंड 1211, व्हाट डज इट मीन, उसकी एक पूरा जर्नल है जिसका ये पेज नंबर है, ठीक है। इस पेज नंबर पे उसने ये मेंशन किया है, जिस बंदे ने वो पढ़ा है उसने पेज नंबर भी मेंशन किया है। रेफरेंसेस में बेसिकली यही देना होता है कि फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द नॉलेज, राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन, दैट ऑथर एंड द बुक वेयर इट हैज मेंशन्ड एंड द पेज नंबर। तो तुम सिंपल उसको जेड फोगो कंट्रोल सी और इसको पैराफ्रेज करने का तरीका बता रही हूँ, इस लाइन को, ठीक है। यहाँ पे जेड फोगो एक्सप्लेन्स और ही फाइंड्स, उसकी फाइंडिंग है ना, तो ही फाइंड्स इन, अब उस पेपर का नाम लिखोगे, ठीक है, इन ब्रैकेट में या कॉमा लगा के, मैं नहीं टाइप कर रही हूँ उसको, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। उस पेपर का नाम जिस पेपर में वो पब्लिश हुआ है, ही फाइंड्स इन दिस दैट द मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड। अब जो पूरा का पूरा नोबल स्कोन फ्लाइज का मैकेनिज्म है, ओके, इज प्रपोज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन। तो फिर तुम इसको पूरे को रेड कर दोगे और नंबर 4 को हटा दोगे, क्योंकि नंबर 4 हमने मेंशन कर लिया, उस बुक का नाम, उस राइटर का नाम, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डबल, अब दिस एंटायर मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, दिस एंटायर प्रोसेस मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को चेंज कर दो, प्रोसेस बोल दो इसको, प्रोसीजर बेस्ट है। प्रोसीजर मैकेनिज्म, ओके, द सुटेबल सिनोनिम इज दिस इज कॉल्ड डबल एच एस एम ए, ये इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्म है, राइट, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसको फिर ऐसा ही रखो फिलहाल कि इसमें मैंने एडिटिंग नहीं किया। फिर डबल एच एस एम जी इज द मूविंग पार्ट ऑफ द, ये पूरा है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती इसके आगे, यू हैव टू डू इट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट टाइम इस तरह से तुमने पूरा पेपर रीड किया और पूरे पेपर में जहां जहां पे तुम्हें लगा तुमने लैंग्वेज चेंज किया, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स व्हाई 1 वीक टाइम विल बी गिवन। ओके, बाय नेक्स्ट संडे यू हैव टू सबमिट दिस। एक एक लाइन को रीड किया, जहां पे पॉसिबल था वहां पे पैराफ्रेजिंग किया, चेंज किया। ओके, अब थर्ड स्टेप आ गया, अब तुमने पैराफ्रेज कर दिया, बट मेरे को पता होना चाहिए कि वेदर यू हैव डन इट और नॉट। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना कि सेम पेपर दे दिया मुझे। तो तुम क्या करोगे, थर्ड स्टेप में जाके यू विल गो फॉर द प्लेजरिज्म चेक। किस में जाओगे, प्लेजरिज्म चेक में जाओगे। मैं यहाँ से टाइम हो गया। तो पता है पर मैम लीव करती है।
screen. Again, I'm just going to share the screen. Okay. Now what I will type here, plagiarism checker. Okay, please. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब मैंने तो थोड़ा सा पार्ट किया है, तुम पूरे पेपर को इट विल टेक योर 3-4 days अगर तुम कंटिन्यूसली भी काम करते होते, ठीक है, रेगुलरली नॉट कंटिन्यूसली, देन यू विल गो फॉर द प्लेजरिज्म चेकर. अब यहाँ पे एक चीज करनी है तुमने, क्योंकि यू हैव टू गो फॉर द वर्ड काउंट. जैसे कि यहाँ पे रिव्यू में जाओगे ना, तो यहाँ पे वर्ड काउंट मिलेगा इस पेपर का. इस वर्ड काउंट है इसका कम से कम 2934 वर्ड्स है. तो तुम प्लेजरिज्म चेकर में अराउंड 3000 प्लेजरिज्म चेकर फ्री फॉर, ये बहुत सारे वर्ड्स के लिए भी होता है, तो हम 3000 वर्ड्स के लिए जाते हैं, ठीक है, या 2000 के, जितना भी तुम्हारा वो है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द यहाँ पे आई थिंक 3000 पे जाना चाहिए हमें, है ना, नहीं तो नहीं लेगा वो. 3000 वर्ड्स तक गए, ठीक है. अब इस पे जाके प्लेजरिज्म चेकर में जाओ और यहाँ पे इट विल आस्क कॉपी एंड पेस्ट योर आर्टिकल हियर. तो क्या करोगे, यहाँ पे जो पेपर है इसको पूरे को Ctrl+A करके Ctrl+C करके पूरे को टाइप करो, क्योंकि तुमने पूरे में प्लेजरिज्म चेक करना है. मैंने तो थोड़ा ही किया है वो एग्जाम्पल के लिए. उस पूरे पेपर को हमने उसमें कॉपी पेस्ट मार दिया और चेक फॉर प्लेजरिज्म, ठीक है, इसको चेक फॉर प्लेजरिज्म किया. अब यहाँ पे डाउनलोड का कहीं ऑप्शन पूछेगा ये, डायरेक्टली शोइंग. Sometime it ask for the download, पूछेगा. आई थिंक इट इज चेकिंग. ये प्लेजरिज्म चेक, ये सॉफ्टवेयर इसको ऐसे चेक कर रहा है. एक अब ये क्या शो कर रहा है इसमें कि 0% यूनिक अभी तक, मतलब ये सारा का सारा प्लेजराइज्ड है, मतलब पैराफ्रेज नहीं हुआ है. एक और सिंपल बताती हूँ इसमें एक्चुअली फॉर्मेट इज डिफरेंट. उसमें बहुत अच्छे से बताता है यूनिक कितने परसेंटेज है और प्लेजराइज कितने परसेंटेज है. दैट आई विल शेयर विद यू. वो जो प्लेजरिज्म का वो है ना, वो मैं शेयर करूंगी ताकि एक यूनिफॉर्म ही रहे सबका, अलग ना हो. चेक प्लेजरिज्म में जाओ, हाँ इधर आएगा. आई एम नॉट अ रोबोट. चेक प्लेजरिज्म अब आएगा, देखना. ये भी वैसे ही दिखा रहा है, मतलब ये शो कर रहा है कि अभी यूनिक 0% है. इवन जो मैंने किया वो भी नहीं दिखा रहा है उसमें. तो ये सारा ही प्लेजराइज्ड है. ये दिखा रहा है 0% यूनिक, मतलब तुम्हारा खुद का काम कुछ नहीं बता रहा है. आई थिंक मैंने बहुत लिटिल किया, तो आई थिंक बट इट शोज बिकॉज थोड़ा भी करो तो दिखाता है. आई थिंक नॉर्मल में जाती हूँ किसी में. सिलेक्ट फाइल, इसको पहले कंट्रोल. ये बहुत ही सा काम रहता है इसमें. एक बार अगर तुम्हारा डिलीट हो गया तो यू विल गो, पूरा असाइनमेंट चला जाएगा. ये कन्वर्टेड में मैंने डाला है, इधर आया. अब दिखाएगा, देखना. अगर उसने लिया रहेगा मेरा पैराफ्रेज, यस लिया है उसने. कैन यू सी दिस?
यस मैम। Yes, ma'am. ये इसमें जाना है, इसका भी मैं लिंक डाल दूं क्या, शेयर कर दूं अभी? मैं यस कर ही मैम, कर देती Yes, हूँ हाँ ma'am. मैम। ना, गूगल क्लासरूम में आई नीड टू शेयर ऑल दिस थिंग। तो इसी में ही कर देती हूँ, लिंक जहाँ पे डाला है एडिट करके। यू शुड बी वेरी फास्ट इन ऑल, पूरा ये देखो थ्योरी नहीं है पीसी में, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, तो थ्योरी का मतलब ही नहीं बचता। ओके, दिस इज द फॉर प्लेजरिज्म। ठीक है, ये प्लेजरिज्म का मैंने बता दिया। तो ये कहाँ गया वो, यस दिस राइट। ओके, तो देखो दिख रहा है, जो मैंने चेंज किया ना वो यूनिक दिख रहा है, दैट मीन इट इज शोइंग दैट आई हैव पैराफ्रेज दिस। और मेरा भी नहीं है ओनली, उस राइटर ने भी कहीं से कॉपी पेस्ट भी मारा है देखो, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने नहीं किया है, यूनिक 64 नहीं किया मैंने। ठीक है, दैट मीन्स जो राइटर है ना उसने भी चुराया है, क्योंकि रेड रेड जितना भी है वो सारा क्या है, प्लेजराइज। जो रेड में है ना, मतलब उसने भी, जो मैंने तुम्हें नीचे रेफरेंसेस दिखाए ना, उसने डायरेक्टली वहां से उठाया है, उसने उसको कम पैराफ्रेज किया है, इसलिए वो इतना अच्छा आर्टिकल नहीं हो सकता रिसर्च पेपर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अगर 36% प्रेजराइज्ड है, तो उस जो जर्नल है वो एक्सेप्ट करता है 36। मोस्टली होता क्या है, कुछ जर्नल्स तो 0% चाहिए उनको, सब यूनिक हो, कुछ को 5 to 10% चाहिए, कुछ को टेक्निकल है तो 20 to 25% चाहिए। मे बी ये मोर टेक्निकल है, तो दैट वाज एक्सेप्टेड कि इसमें 36% प्लेजराइज्ड है और 64% जो है वो क्या है, यूनिक है। आर यू गेटिंग ऑल दिस थिंग? तो ये यूनिक तुम पैराफ्रेजिंग और करोगे तो और ज्यादा यूनिक आएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। सम टाइम इन सम पेपर्स ऐसा ऑलरेडी रेड नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसा ऑलरेडी ग्रीन नहीं दिखाएगा। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो पूरा ही प्लेजराइज बताएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर, राइट। और फिर तुम जो पैराफ्रेज करते हो उसको यूनिक बोला जाता है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दी स्टेप्स। फर्स्ट डाउनलोड द पेपर, फर्स्ट चेक द जर्नल, रेप्यूटेड जर्नल लो, एच फैक्टर देखो, सॉरी आई इम्पैक्ट फैक्टर देखो, एच इंडेक्स देखो, ठीक है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पेपर ले लो जो तुम्हें इजी लगे, पेज लेंथ ले लो, 3 to 6 का ले लो, एवरेज मान के चलो कि इतने का ही लेना है। उसके बाद उसको डाउनलोड करो, देन पीडीएफ से उसको वर्ड में वो करो, एंड फिर तुम कभी भी जब तुम्हें व्हेनेवर यू आर गेटिंग टाइम 1 hour 2 hour बैठो, उसको पैराफ्रेज करते रहो, लैंग्वेज चेंज। वंस द फुल पेपर विल बी डन, देन उसको प्लेजरिज्म के लिए यू जस्ट पुट इट इन द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे साइट पे जाके उस पर डाल दो। फिर यहाँ पे ये ना डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा कहीं पे, सी द डाउनलोड का ऑप्शन, क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे चाहिए एक्चुअली असाइनमेंट के साथ। इट इज नॉट शोइंग हियर, नहीं होगा तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, ठीक है। वैसे मोस्टली डाउनलोड का रहता है, वी नीड टू फाइंड, तुम डिफरेंट उस पे जाओगे ना, ट्राई मारोगे, तो किसी में ये मिलेगा 100% यूनिक, सेंटेंस वाइज एंड मैच। यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा है, इट विल शो समवेयर, ओके, यू जस्ट ट्राई। अगर ये नहीं दिखाता है कहीं पे तो व्हाट यू डू, स्क्रीनशॉट लेके इसको रखो और ये डॉक्यूमेंट मेरे असाइनमेंट के साथ अटैच करो गूगल क्लासरूम में। क्या करना है अटैच, ये वर्ड डॉक्यूमेंट जिसपे कि तुमने पूरा पैराफ्रेजिंग किया है, और द टॉप पे क्या लिखा है, पैराफ्रेज्ड बाय योर नेम, और इसको फिर 12 साइज पे ले आना है। हाँ? अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 12 पे रखा था, अभी इसको 12 पे ले आओ, और रेड वाले को भी ब्लैक कर देना है फिर बाद में, ठीक है, ताकि वो पेपर लगे। और उसके बाद सेव करते जाओ इसको, और गूगल जो क्लासरूम में असाइनमेंट वॉट एवर आई विल क्रिएट, वहां पे ये अटैचमेंट चाहिए मुझे, और दूसरा चाहिए मुझे ये वाला। ये मैं एक और लिंक देती हूँ जिसपे कि डाउनलोड का ऑप्शन भी रहता है। यहाँ पे वी आर इन हरी, सो वी आर नॉट एबल टू, यहाँ कहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसको वी कैन डाउनलोड दिस एक्चुअली, हो जाएगा देखो। Let me check here total.
ये पूरा पेपर है and past accurates. I will send you other link. You just do it first. Yes. Sorry. We are in a hurry, so that's why it is not showing download. ये बोला generate. तो रिपोर्ट फाइल का नाम देके इसको ये भी सी देखती हूँ मैं. जनरेट रिपोर्ट कहीं आना चाहिए इसको. ठीक है, आई विल शो इट लेटर. फर्स्ट डू पैराफ्रेजिंग, देन आई विल शेयर द लिंक फॉर द प्लेजरिज्म. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई. यू जस्ट चेक करो जहां पे डाउनलोड वाला कोई साइट मिलता है वहां पे डाउनलोड करके उसको भी अटैच करो. दिस इज ऑल अबाउट दिस. एनी डाउट हियर व्हाट वी हैव टू डू? कुछ डाउट रहा तो अभी पूछ लो प्लीज. वी आर लेट. 1 week time is there, and with this abhi next lecture weekly we are having lecture only, so we will be too late actually. uh, one more task I just want to give to you. क्लियर हो गया ना? किसी को भी डाउट है पूछ सकता है. व्हाट्सएप ग्रुप, सेपरेट ग्रुप इज देयर. कुछ भी पूछो, कभी भी पूछो. यू आर वेलकम ऑल द टाइम. एंड नाउ जो मेजर काम है जिसके मैक्सिमम का वर्क मार्क्स एंड टर्म वर्क में, दैट इज योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए yesterday मैम टोल्ड यू ग्रुप बनाओ. यू हैव मिनी प्रोजेक्ट का ग्रुप. कम ऑन बी प्रॉम्प्ट, जल्दी मुझसे बोलो. Yes, ma'am. उसमें हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन वन ग्रुप? 3 to 4. 3 to 4 फिक्स Ma'am, नहीं है. actually we have created the group for project. Yes, ma'am. Yesterday. Yes, you have created, but let me give you one tip for this. देखो मिनी प्रोजेक्ट में हर सब्जेक्ट के मिनी प्रोजेक्ट में तुमने सेम ही ग्रुप रखा है क्या? क्या मैम? ग्रुप सेम है ना? तो पीसी में भी वही मेंबर चाहिए. बिकॉज क्यों ऐसा? देखो फॉर एग्जाम्पल यू 4 मेंबर्स आर देयर. रोल नंबर 30, रोल नंबर 7, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 16. मान लो ये 4 लोग जो है वो मिनी प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट में भी वही है, दूसरे में भी, तीसरे में भी. तो मेरे में भी वही रहो. क्यों? कोऑर्डिनेशन के लिए. अदरवाइज इट विल बी बिट डिफिकल्ट. तुम्हारे ग्रुप मैस हो जाएंगे. तो सेम ग्रुप. मेरा कोई ऐसा तुम्हारे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस नहीं है. सिंपली आई एम जस्ट टेलिंग ऑल द पीपल कि जो एक ग्रुप ऑलरेडी तुमने किसी के साथ मेंटेन किया है ना, पीसी के लिए भी वही ग्रुप ले लो. ऑल Ma'am. 4 या 3 members will be there. Yes. Ma'am, but actually we have already created group, decided topic, and we have distributed the topics that we will do. So like, can we go with I'm that? not going to change that. मैं वही बोल रही हूँ. बट ये जो ग्रुप्स है तुमने अलग बनाए हैं क्या? मतलब जो whatever the groups are there for the mini project, same group members are there for the PC or different groups? Actually yesterday ma'am told that we should combine 2 groups, so we have combined our groups to 2 groups. So would that do? Then how many members are there in one group now? 7. No, it is strictly written in your term work वाले syllabus में जाओ. उन्होंने note more than I think 5 बोला है. That's Ma'am, right. but yesterday ma'am told us to make a group of Actually, 7 what or mistake? Actually, it was done by mistake because already we decided that report I am going to take and advanced technical writing presentation. But she forgot. Actually, she is new, so she started with the report because she is doing this report in IT and other. But now she told me that by mistake, ma'am, I took your part and I explained the thing to students. Then I told her that tomorrow, that means today lecture was there, so I make everything clear to them. The topic, if you have selected, देखो, we have to do it seriously because project reports we have to keep in our record. One thing is there. Later on, whenever you have to go for any NBA के accreditation के लिए जाना रहता है, then it can create problem for me even and for you because we have to show the course outcomes over there, right? So अभी मैम ने just तुम्हें guide ही किया है. If you have selected the topic, that is okay. But do you know what topics you have to take? मैम ने तो जनरल टॉपिक भी बताए होंगे तुम्हें. बट आई एम स्ट्रिक्टली फॉर द टेक्निकल बिकॉज आई एम गिविंग टेक्निकल टॉपिक फॉर CMP and PCE, this civil and electronics, and every year we give topics. Ma'am, this time she has been recruited, and she earlier Neena ma'am was there. You are familiar with Neena ma'am. So since beginning we are giving, even for BCE and PC we are giving technical topics. So I want my people, even EXCC में भी तुम technically ही topic लो.
ओके, बिकॉज अर्लियर आई थिंक इन 15-16 आई टू की EXTC, तो वहां पे भी मैंने टेक्निकली दिया, बिकॉज टेक्निकल टॉपिक विल हेल्प यू, जनरल टॉपिक विल नॉट हेल्प यू, दो इट इज गिवन इन द सिलेबस कि तुम तो ग्लोबल वार्मिंग पे भी बना सकते हो, और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर यू, यू जस्ट टेल मी, एग्रीड और नॉट? Yes, ma'am. लेकिन अभी ज्यादा वर्क तो किया नहीं ना तुमने, ऐसा तो नहीं कि तुमने 15 पेजेस लिख लिए ना, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज, ऐसा नहीं है ना? तो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स वेरी स्मूथ। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स वी हैव टू लर्न, एंड ग्रुप डायनामिक्स के भी 5 नंबर है। इफ यू हैव नॉट सीन द सिलेबस, यू जस्ट सी द सिलेबस, उसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एथिक्स को ऐसा सब्जेक्ट मानो कि प्रैक्टिकली वी हैव टू डू। इफ आई एम टीचिंग यू इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारे अंदर वो डेवलप होने चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं? टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम, तो ये सब तुम्हें लर्न, लीडरशिप क्वालिटी। इफ राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि बेटर टू मेक ग्रुप सेम एज यू हैव इन द मिनी प्रोजेक्ट। मेरे को एक चीज बताओ, ओके, कंप्लीशन ऑफ टास्क इज इम्पोर्टेंट और योर फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट? टेल मी, इफ यू आर परस्यूइंग एनी प्रोजेक्ट, क्या इंपॉर्टेंट है? Completion. Deadlines are, yes, deadlines are important. Now question कहाँ पे रेज होता है कि why I am not able or open to choose my group? तुम बोलोगे कि मैम ने ऐसा क्यों बोला? Why? Because something is hidden behind this. देखो, एक ग्रुप जो मिनी प्रोजेक्ट में तुम काम कर रहे हो, ओके, तो 4 लोगों का, ओके, 4 people they are coordinated well, क्योंकि उन्होंने एक टास्क पे वो काम कर रहे हैं, वहां पे 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन मेजर है, वो बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे भाई, बिकॉज दे हैव टू सबमिट देयर मिनी प्रोजेक्ट, तो 4 लोग मिलके करेंगे ना, तो मेन फोकस किस पे रहेगा? 4 लोग। अब ड्यूरिंग दिस वर्क, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर मिनी प्रोजेक्ट, मेरे को पता है तुम लोगों ने कर दिया शुरू, तो उन 4 लोगों का ट्यूनिंग हो गया है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक कोऑर्डिनेशन हो गया है, एक टीम वर्क हो गया, वहां पे टीम स्पिरिट आ चुकी है, दे नो ईच अदर वेरी वेल। अब ऐसे में मुझे एज ए स्मार्ट टीचर मुझे क्या करना चाहिए? वही ग्रुप को मैं कंटिन्यू करूं। यस, मिनी प्रोजेक्ट पे नहीं करो, उसमें अगर स्लाइड मॉडिफिकेशन इज देयर तो करो, ओके। मिनी एग्जैक्टली, बिकॉज मिनी प्रोजेक्ट वाला ब्लैक बुक तो तुम्हारा बनना ही है, ओके, वो तुम पीसी में नहीं शो कर सकते। व्हाट यू कैन डू, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है बेटा इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, क्योंकि वो मेजर असाइनमेंट है, उसमें हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक भी सिखाते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके आगे सिलेक्ट हो गया, नो। प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड, which topic will be eligible or viable for the research, okay, exact word is the viable, the applicable, जिस पे already work is not done, maximum work has not been done on that topic, तो तुम उसको करोगे ना। अगर already people they have, okay, next lecture started on, you can say I will continue with this. What you do, you select your topic on WhatsApp, I will give you the guidelines for the selection of the topic, and most probably if it is possible I will send you the link where you can see the